for all of you that in computer syllabus, that is a chapter number 1 in computer. The computer teacher told me to inform the syllabus. Okay. कंप्यूटर्स में बेटा आपके सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर आएगा, whether it should be assignment or unit test, whatever it is. तो फर्स्ट चैप्टर आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा. So I think no more students. Harshit Agrawal, okay, join fast beta. Okay, which one is? Kakul Jain, yes beta, unmute yourself. मैम कल तो नहीं है टेस्ट, अगले हफ्ते होगा ना फिर? Yes beta, next week. Tomorrow will not the online class also beta. So I think there is not more queries. Okay. So now I'm start the topic. The next topic in compounds is that is the criteria of purity of compounds. Means compounds की purity को कैसे check करेंगे? Normally जितने भी compounds हैं उनको pure तब कहा जाता है जब उनका एक sharp melting point होता है. A solid compound is always said to be a pure or the purest form when it has a sharp melting point. Sharp melting point means the temperature at which whole the solid melts within 0.5 degrees Celsius. Means ऐसा temperature जिसमें कोई भी solid 0.5 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है. सो इफ द लोअर मेल्टिंग पॉइंट इज देयर देन द सॉलिड इज मस्ट बी इम्प्योर. अगर मेल्टिंग पॉइंट स्लोअर होता है या कम होता है तब वो सॉलिड इम्प्योर होता है, बिकॉज द इम्प्योरिटीज डिप्रेसेस द मेल्टिंग पॉइंट. अगर किसी भी सब्सटेंस में इम्प्योरिटीज मिक्स हैं तब वो सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देती हैं. फॉर एग्जाम्पल बेटा, इफ यू यूज नेफ्थलीन balls are those balls which we all are used in cupboards, or is the brand name is Odonil, that has a melting point of 80 degree Celsius. नेफ्थलीन balls हैं जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में बेटा फिनाइल की टैबलेट्स कहा जाता है. ये फिनाइल के टैबलेट्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है मींस लिक्विड में कन्वर्ट होने की जो स्टेट है that is basically 80 degrees Celsius. But in the first chapter, as we learned that naphthalene is a sublimate compound, so in the given sample naphthalene also melts at 80 degrees Celsius. But please students join the class on time, otherwise it will interrupt the explanation. So if the impurities mix in the naphthalene ball or Odonil or whatever the sublimate compound is, it decreases its melting point. Similarly, a boiling point is also a fixed temperature, but if impurities are to be mixed in that, the boiling point is to be changed. So what is the application of boiling point? Pure liquid के boiling point के application में first one is distinction between a pure liquid and the solution of a non-volatile solute. Non-volatile word का meaning है ऐसा solute, solute means जिसको हम dissolve करते हैं, जो अपने आप evaporate नहीं होता है, उसे non-volatile कहा जाता है. Similarly, distinction between a pure liquid and its mixture with another miscible liquid. Miscible word का meaning बताया था बेटा, जो mix हो जाता है. अगर किसी दूसरे miscible liquid में mix है तो उस mixture के boiling point को check किया जा सकता है, because if there is a certain impurities, the boiling point is to be changed, and if the pure liquid is present, its boiling point is to be on standard value. So according to this, another topic is physical and chemical changes. These changes you have learned in primary classes, I think in 7th or 8th. Physical changes are those changes which cannot change in their property, but
they only change in their physical property. फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस को कहा जाता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस के केवल आउटर अपीयरेंस चेंज होता है, कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। ऐसे चेंजेस को फिजिकल चेंजेस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द कन्वर्जन ऑफ वाटर into solid, liquid or gas or vice versa is a physical change, because during the interconversion of state, no new product is to be formed. इंटरकन्वर्जन की स्टेट में कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, so that the interconversion of water is a physical change. Similarly, preparation of a solution, अगर हम किसी भी सॉल्यूशन को बनाते हैं, दैट इज आल्सो फिजिकल चेंज। फॉर एग्जांपल, इफ वी ऐड कॉमन सॉल्ट और शुगर इन वाटर, a salty or sugary solution is to be formed. So if we have to change the solution, means अगर हम इस solution को evaporate करते हैं, then we will return back the salt or the sugar. So it is a physical change. फिजिकल चेंज में बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज केवल चेंज होती हैं, कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है और ना ही उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिजिकल चेंजेस में जिस भी 2 या 3 सब्सटेंसेस को मिक्स किया है, हम इनको रिटर्न कर सकते हैं, सो दैट द फिजिकल चेंजेस आर कॉल्ड एज रिवर्सिबल चेंज। डेली लाइफ में बेटा फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल में, व्हेन यू स्ट्रेच अ रबर बैंड, जब आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो या खींचते हो, तब उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करना छोड़ देते हो, वो अपने प्रीवियस पोजीशन में आ जाता है, अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को रीगेन कर लेता है। so it is also physical change. Similarly, interconversion of water को means liquid form को हम केवल solid में convert करते हैं during the freezing. Next one is when we are boiling the liquid, it can only convert into its state, means liquid state gas state पे convert होती है, लेकिन कोई भी नया compound या component नहीं बनता है। So this is also physical change. Next most important in daily life, breaking of a glass, tearing of a paper, that also include in a physical change. ग्लास को आप तोड़ देते हो या कोई भी ग्लास का यूटेंसिल है, प्लेट्स हैं, कप्स हैं, सॉसर हैं, अगर ये टूट जाते हैं, दैट इज आल्सो फिजिकल चेंज, बिकॉज इट डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल पीसेस बट नो न्यू सब्सटेंस इज टू बी फॉर्म्ड. Similarly, glowing of a bulb, switch on the fan, these all are the physical change, because during this activity only changes are to be formed in the physical appearance. जब हम स्विच ऑन करते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी सर्किट फॉर्म होने के कारण बल्ब या CFL, LED, whatever it is, it only glows. जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं, सर्किट ओपन हो जाता है, करंट फ्लो होना बंद हो जाती है और वो अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ जाता है. So that is also another example of another example of physical change. Similarly, melting of wax is also another example of physical change. Next most important is tearing of paper, stretching of rubber bands, making fruit salad from raw fruits, cutting of the vegetables. These all are physical change, because during the cutting only the shape is to be changed, no new substance is to be formed. So that is a physical change. So what about the chemical change? Chemical changes are those changes in which new substances are formed and the new substance cannot be returned to its original position. Chemical changes ऐसे changes को कहा जाता है जिसमें कोई भी चेंज की कंडीशन में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और ये न्यू सब्सटेंसेस अपने प्रीवियस कंपोनेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं या अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आते हैं. सो दे ऑल आर केमिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस आर ऑलवेज irreversible changes.
Irreversible means the changes which are not to be returned back to its original position. That all changes are called as chemical changes or the irreversible changes. तो irreversible changes, chemical changes को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें न्यू सब्सटेंसेस जो फॉर्म होते हैं, उन न्यू सब्सटेंसेस को हम प्रीवियस कंपोनेंट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. So these all are known as chemical change. For example, in your daily life, as I told you earlier, that cutting of vegetable is a physical change because there is only change in the shape, but cooking of a food is a chemical change because during the cooking, a substance means vegetable or whatever it is totally converted into a new substance. Means after cooking we cannot convert that vegetable into its raw form. हम इनको previous form में convert नहीं कर सकते हैं. So these all are known as irreversible changes. Next example of the irreversible or the chemical changes are burning of paper. पेपर को बेटा जब हम बर्न करते हैं, वुड है, पेट्रोल है, किसी को भी लकड़ी या पेपर को जब आप बर्न करते हो, जलाते हो, तब ये ब्लैक कलर के कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. दैट ब्लैक सब्सटेंस इज कॉल्ड एज कोल. लकड़ी को जब जलाते हैं बेटा तो वो बाद में ब्लैक कलर की हो जाती है, जिसको वुड चारकोल कहा जाता है. पेपर को जब हम बर्न करते हैं वो ब्लैक ऐश में कन्वर्ट हो जाता है. So that both black charcoal or black ash could not be converted into original paper or original wood. So it is also a chemical change. Similarly, rusting of iron. Rusting of iron का मतलब होता है बेटा लोहे में जंग लगना. जब किसी भी आयरन आर्टिकल पर जंग लगती है तब उस आयरन को जो डैमेज होता है, उस डैमेज्ड पार्ट को हम रीगेन नहीं कर सकते हैं. So these are called as the chemical changes. Similarly, conversion of milk into curd. दूध से बेटा दही का बनना, that is also a chemical change because from curd we cannot convert into milk again. So that is a chemical change. Next one is, as I told you in yesterday class, that during the compound formation. So all the compound formation are chemical change. But in daily life, a single example is there which is included in both physical as well as chemical changes. So that is the burning of a candle. Candle को जब हम burn करते हैं तो physical as well as chemical both the changes are to be followed first. So how about the physical change? So physical change is in the candle, melting of wax is a physical change, but burning of thread which is to be present inside the wax, that is the chemical change. कैंडल को जब हम बर्न करते हैं या जलाते हैं तो उसका जो वैक्स मेल्ट होता है वो फिजिकल चेंज है, क्योंकि उस मेल्टेड वैक्स को हम कलेक्ट करके दोबारा से उसकी कैंडल बना सकते हैं. तो दीज आर अ फिजिकल चेंज. बट जो थ्रेड उसके अंदर बर्न होता है उस थ्रेड को हम वापस यूज नहीं कर सकते हैं. इसलिए इन द बर्निंग ऑफ अ कैंडल, burning of thread is a chemical change, but melting of wax is a physical change. Similarly, another example of chemical changes in our body, digestion, respiration, these all are the chemical changes. Formation of milk, formation of a curd, ripening of fruit. Fruit ripen होते हैं या आप उनको plucking of fruits or vegetables, fruit और vegetables को हम pluck कर लेते हैं. प्लग करने के बाद हम इनको वापस प्लांट पर ग्रो नहीं कर सकते हैं. सो दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द केमिकल चेंज. कटिंग ऑफ ट्री आल्सो इंक्लूडेड इन द काइंड ऑफ अ केमिकल चेंज बिकॉज ट्रीज को जब हम कट कर देते हैं देन इट इज देयर आर टू कंडीशन, इट मे बी डेवलप्ड और मे नॉट बी डेवलप्ड. सेकेंड वन इज इट रिक्वायर मच मोर टाइम टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन. सो कटिंग ऑफ अ ट्री इज अ केमिकल चेंज. सो in these topics, if anybody have any query, then ask me. अभी तक का जो टॉपिक है बेटा उसमें अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो उसको आप पूछ लीजिए. आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट न्यू टॉपिक. फिजिकल केमिकल चेंजेस से रिलेटेड या कंपाउंड की प्योरिटी से रिलेटेड
Fahad Ahmad. Okay, wait a minute, beta. Yes, beta, unmute yourself. Ma'am, you have said that cutting of trees is a chemical change, but why Yes, beta. cutting of fruits is not a chemical change? Actually, beta, cutting of fruits is not a chemical change, because when we cut the fruit, it's not changes its chemical composition. बेसिकली केमिकल चेंज का करेक्ट मीनिंग है कि जब किसी भी सब्सटेंस में केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आ जाता है, उसे केमिकल चेंज कहते हैं. जब हम फ्रूट को कट करते हैं, सपोज आपने कोई भी फ्रूट बेटा कट किया, उसके न्यूट्रिएंट्स तो सेम है, न्यूट्रिएंट वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है, बट दे हैव चेंज देयर शेप. आपने उसको पीसेस में कट किया तो उसका शेप चेंज हो जाता है, लेकिन ट्री को जब हम कट करते हैं उसको केमिकल चेंज की कैटेगरी में इसलिए रखा जाता है बिकॉज व्हेन वी कटेड द ट्री there is a chemical composition changes because of the bacterial decomposition or the termination of photosynthesis. Means trees को बेटा जब हम कट करते हैं, आपने सपोज ऑलमोस्ट बॉटम से उसको कट कर दिया है, तब एनवायरमेंट में या सॉइल में जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनके डिकम्पोजिशन से उस प्लांट का केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है. सेकेंड वन इज ट्रीज को कट करने से लीव्स भी अगर उसमें नहीं है, then photosynthesis की रेट स्टॉप हो जाती है, so that plant is to be almost in the dead position, so that is a chemical change. Right? Any other query beta? Fahad, do you have any other query beta? Okay beta. और किसी स्टूडेंट को बेटा कुछ भी पूछना है भी इस टॉपिक में तो पूछ लीजिए. और फहाद अगर बेटा क्वेरी आपकी रिजॉल्व हो गई है, देन रिमूव योर रेज हैंड. नोबडी हैव एनी क्वेरी? ओके, वेरी गुड. So next topic is what is the difference between the physical and chemical changes? This question belongs to 3 or 5 marks. एग्जाम में बेटा ये क्वेश्चन 3 या 5 मार्क्स में नॉर्मली पुट अप होता है. So on that basis, we have learned the 5 differences between the physical and the chemical changes, right? So in physical changes, first is the definition. During a physical change, there is a change in the physical property only. Physical property means either it should be state change, shape or size. But in a chemical change, there is a change in their chemical properties or chemical composition. So that one is a chemical change. Next difference is physical change. During the physical change, no new substance is to be formed, but in a chemical change, new substance is to be formed. Next one is during a physical changes, they are easily reversible. फिजिकल चेंज में जो भी चेंज प्रोसीड होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, मीन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न हो जाते हैं. बट केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं. अगर आपने दो सब्सटेंस को या केमिकल चेंज करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, देन दीज प्रोडक्ट आर नॉट टू बी रिवर्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, सो दैट इज अ केमिकल चेंज. So next one is physical changes are temporary changes and the chemical changes are permanent changes. Next one is during a physical change, a small amount of heat and light is absorbed or released. Physical change में बहुत कम amount में energy, heat या light के form में या तो release होगी या absorb होगी. But during a chemical change, large amount of heat and light are always absorbed or released during a chemical reaction. Next one is during a physical change, the chemical composition of the substance does not change. Physical change में substance का chemical composition change नहीं होता है, but during a chemical change, the chemical composition of the substance must be changed. Chemical change में जो substances हैं, उनका composition 100% change हो जाता है. So these are the differences between the physical and the chemical changes.
So if there is any other query, then raise your hand. अगर आप में से किसी को कोई भी क्वेरी है, ओके अभय बंसल, यस बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मुझे ये क्वेरी है कि अभी आपने बताया जो कटिंग ऑफ फ्रूट्स है वो एक फिजिकल चेंज है और वो दोबारा अपनी पोजीशन में आ सकता है। तो मैम अगर हमने Yes, एक बार बेटा। एप्पल को कट कर दिया तो हम उसे दोबारा थोड़ा ना जोड़ पाएंगे। बेटा जोड़ नहीं पाएंगे। फिजिकल चेंज का मतलब है कि उसका शेप चेंज हो गया है। आपने एक होल एप्पल को पीसेस में कट कर दिया तो एप्पल की क्वालिटी चेंज नहीं होती है, केवल उसका शेप चेंज हो जाता है। एंड वी आर नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। रिवर्सिबल है एक्चुअली बेटा। जो चेंजेस हैं, एवरी चेंजेस हैव डिफरेंट क्राइटेरिया। तो नॉर्मली फिजिकल चेंजेस को रिवर्सिबल की कैटेगरी में इसलिए रखा है बिकॉज द कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर इज अ फिजिकल चेंज, so that includes in the physical change। लेकिन आपका कहना करेक्ट है कि फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को जब हम कट करते हैं तो हम उसको एड ऑन नहीं कर सकते हैं, उसके ओरिजिनल शेप में नहीं ला सकते हैं। दैट इज करेक्ट। बट रिवर्सिबल इसलिए बेटा क्योंकि स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड और कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज अ फिजिकल चेंज। साइंस में बेटा कुछ लॉज और थ्योरीज ऐसे हैं जिनमें एक्सेप्शंस इंक्लूड होते हैं। ओके, एनी अदर क्वेरी बेटा? नो मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम बेटा। बेटा अभी भी किसी स्टूडेंट को अगर कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए। तो हम ओके बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। यस बेटा बोलिए। मैम यस बेटा। मैम बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज? बेटा बर्निंग ऑफ कैंडल को दोनों कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो उसका जो बाहर वैक्स है जिसको आप मोम बोलते हो वो मेल्ट होता है और उस मेल्टेड वैक्स को हम रीयूज कर सकते हैं। मीन्स उसको कलेक्ट करके दोबारा से हम कैंडल बना सकते हैं। तो इन अ बर्निंग ऑफ कैंडल मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज, बट बर्निंग ऑफ थ्रेड, उस कैंडल के अंदर जो थ्रेड लगा है जिसको आप बर्न करते हो वो केमिकल चेंज है, क्योंकि थ्रेड बर्न हो जाता है, उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। राइट? एनी अदर क्वेरी? तो हम और कुछ पूछना है बेटा? ओके बेटा। और किसी भी स्टूडेंट को बेटा कोई भी क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड तो उसको पूछ लीजिए। बेसिकली 10 minutes are only there to end the class। जितने भी बच्चे हैं क्लास में बेटा, किसी को कोई भी अगर क्वेरी है तो पूछ लीजिए। इसके बाद ओके मुस्कान, वेट अ मिनट बेटा। यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम आपने आज यहाँ तक पढ़ाया, वहाँ इधर आएगा टेस्ट में कल? बेटा कल टेस्ट नहीं है एंड देयर इज नो ऑनलाइन क्लास टुमारो आल्सो बेटा। कल टेस्ट नहीं है, कल आपकी क्लास नहीं बेटा, कल क्लास नहीं है। नो बेटा नो, कल कोई भी टेस्ट नहीं है, इवन कल आपकी क्लासेस भी नहीं है बेटा। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। एनी अदर क्वेरी टू एनी स्टूडेंट? बेटा और किसी को कोई भी क्वेरी है, आस्क मी। एंड वन इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर कंप्यूटर टीचर साइड, दैट इन कंप्यूटर फर्स्ट चैप्टर आपके टेस्ट में आएगा बेटा। जब भी आपके टेस्ट होंगे तो कंप्यूटर के सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 है। और किसी को कोई भी क्वेरी नहीं है? वेरी गुड। ओके, दीक्षा गोयल, नो, रिमूव योर हैंड। ओके, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी नहीं है बेटा तो इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, जिसको आता है बेटा रेज योर हैंड so that I can easily judge that how much you understand the topic. Okay, so first question is, name a metal
which is liquid at room temperature. Who gave the answer? Abhay Bansal, Ayush, okay, all. Ayush Tiwari, yes beta, unmute yourself. Ma'am, mercury is the answer. Okay beta, correct answer. Very good. So the next question is, name a metal which is liquid at room temperature. Name a non-metal. Listen carefully. Name a non-metal which is liquid at room temperature. Okay, Malia Agrawal, unmute yourself, beta. Ma'am, bromine. Yes, beta. Ma'am, bromine. Okay, correct answer. Bromine, correct answer, beta. Very good. So the next question is, name a homogeneous mixture which is present in solid form. एक होमोजेनियस मिक्सचर का नाम बताना है जो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ओके, दीक्षा गोयल. ओके, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. दीक्षा, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. नो. तन्वी गुप्ता, अनम्यूट बेटा. गिव द आंसर. तन्वी, एक ऐसे होमोजेनियस मिक्सचर का नाम बताना है जो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. तन्वी, आपकी मैम ब्रास आवाज नहीं आ रही क्या? ओके, रघुराज सक्सेना, आंसर Yes, दीजिए ma'am. बेटा. My answer is bronze and brass. ब्रॉन्ज एंड ब्रास. इसका एक कैटेगरी क्या है बेटा इसकी? इसमें मतलब क्या मिल ये इसकी होमोजेनियस मिक्सचर का वो है, ग्रुप का नाम क्या है सॉलिड में बेटा? आता है. सॉलिड में आता है. नाम क्या है ग्रुप का? मिस्की लिक्विड था मैम. नहीं बेटा, इसको एलॉयस कहते हैं. हाँ मैम, अलॉयस. होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड इज एलॉयस. ओके ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर विच इज प्रेजेंट इन सॉलिड फेज. एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का नाम बताना है जो सॉलिड फेज में प्रेजेंट होता है. माल्या अग्रवाल, यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम, वुड. हेट्रोजीनियस मिक्सचर में मिक्सचर पूछ रहे हैं मैम, बेटा. वुड. गुड. ओके, वन मोर एग्जांपल. मैम, चीज. नहीं, नहीं. नो बेटा. सेकेंड एग्जांपल बेटा, कल आप लोगों को बताया था, शुगर एंड सैंड, दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. सोडियम क्लोराइड इज आल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर. दीज आर द एग्जांपल्स. ओके, तो ओनली 4 मिनट्स आर लेफ्ट. अगर अभी भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए. कोई भी क्वेरी है तो बेटा पूछ लीजिए इस टॉपिक से रिलेटेड. नेक्स्ट क्लास में आपके बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. इन द नेक्स्ट टॉपिक मिक्सचर्स के जो टाइप्स है, सॉल्यूशन अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे, सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं. तो दीज ऑल आर द सॉल्यूशन, राइट. इस टॉपिक से रिलेटेड बेटा प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर, प्रीवियस वीक का बेटा जितना भी सिलेबस है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप उस चीज को पूछ सकते हैं. अपनी क्वेरीज को क्लियर कर लीजिए इफ यू हैव एनी क्वेरी.
क्वेरी है बेटा कोई आप लोगों को? नो, वेरी गुड, ओके। So one more question. The question is 22 karat gold is a mixture or pure substances? 22 कैरेट का जो गोल्ड है ये मिक्सचर है या प्योर सब्सटेंस है? फहद अहमद, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। Ma'am, it is a mixture. 22 carat gold is a mixture. Okay, why? What is the reason? I don't know. Okay, the reason is in 22 carat gold, copper is to be mixed as an impurity, so it is a mixture. Okay. Okay, ma'am. Okay, beta. So all the class, your topic and general question answer quiz form is completed and time is almost completed. Hardly 1 minute is left. So I am ending the class. अभी भी कोई क्वेरी हो बेटा बिफोर एंडिंग द क्लास? आपको पूछना हो तो कुछ पूछ लीजिए. नो क्वेरीज? देयर आर 3 क्वेरीज. ओके. अभय बंसल, यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम टाइम टेबल यही रहेगा ना? मे बी चेंज, मे बी. आपको ओके मैम, तो हम फिर मैम संडे नाइट को उसे दोबारा अपलोड कर लेंगे. अगर कोई चेंजेस होंगे तो हमें पता चल यस जाएंगे ना. बेटा, यस बेटा, यू हैव टू अपलोड. ओके मैम, थैंक यू. ओके बेटा, वेलकम बेटा. रघुराज सक्सेना, यस बेटा बताइए. मैं हमने तो आंसर देने के लिए जवाब दिया था कि वो मिक्सचर था. 24 कैरेट गोल्ड प्योर होता है. ओके, चलिए अब आपको आंसर देना है तो एक क्वेश्चन और आपके लिए, 1 मिनट है. यस मैम. So the question is petrol is a pure substance or homogeneous mixture? पेट्रोल प्योर सब्सटेंस है या होमोजीनियस मिक्सचर है? नहीं, होमोजीनियस मिक्सचर है. ओके, वेरी गुड आंसर बेटा, वेरी गुड, थैंक यू. So all the class time is completed. Now I am ending the class.